الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ مخلصی فی اللہ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد کاشف جمیل القادری صاحب، خطیب جامع مسجد حاضہ ڈسٹرکٹ خطیب لاہور جناب محمد اسد اطاری قادری صاحب، جناب محترم علامہ محمد عارف ستار القادری صاحب، محترم الحاج شہباز انصاری صاحب اور بابا محمد شفیق صاحب، حاضرین ذی احترام، سب سے پہلے میں گلہائے عقیدت پیش کرتا ہوں سبحان اللہ روحانی محافل کی انتظامیہ اور شرکاء کی خدمت میں، جو لگاتار 9 سال سے 10 روزہ روحانی محافل کا انتظام کر رہے ہیں اور بڑی محبت، محنت اور کاوش سے بڑے حسین انداز میں ان محافل کو سجا رہے ہیں۔ مجھے بھی غالباً تیسری یا چوتھی بار یہاں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور شرکاء کی خدمت میں بھی ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں، جو لگاتار 10 راتیں یہاں آ کے ذکر آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار اور ذکر صحابہ اور ذکر اہل بیت سے اپنے قلوب کو منور کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کے اس پرفتن دور میں مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ بس رہا ہو، وہ پریشان ہے کہ امت مسلمان دن بدن تباہی، بربادی، قسم پرسی کے ایک عمیق سمندر کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہر ذی شعور مسلمان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا اس ذلت، رسوائی کہ عمیق سمندر سے نکلنے کے لیے کوئی نسخہ کیمیا ہے یا نہیں؟ الہ العالمین نے ان آیات میں ہمیں کامیابی کا ایک نسخہ عطا فرمایا ہے۔ فرمایا، اے میرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والوں، اگر تم دنیا میں عزت چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو، دبدبہ چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ میرے محبوب کے دامن سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لو۔ اب دامن مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا سے تعلق مضبوط کرنے کا یہ معنی نہیں کہ ہم زبان سے کہہ دیں محمد اللہ کے آخری رسول ہیں اور بس۔ تعلق بالرسول کے 4 تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا۔ پہلا ہے ایمان بالرسول، والذین آمنوا بہ، وعزروہ، پھر ہے تعظیم رسول، توقیر رسول، ونصروہ، فرمایا سب سے پہلے میرے محبوب کے ساتھ ایمان لاؤ، پھر میرے محبوب کا ادب اور تکریم کرو، پھر میرے محبوب کے لائے ہوئے دین کی مدد کرو۔ فرمایا واتبعوا النور الذی انزل معہ، پھر میرا محبوب جو دین لایا ہے اس کی پیروی کرو۔ فرمایا اولئک هم المفلحون۔ جب تعلق بالرسول کے ان 4 شرائط اور تقاضوں کو پورا کر لو گے، تمہیں تلاش منزل کی ضرورت نہیں رہے گی، منزلیں تمہاری تلاش میں نکل پڑیں گی۔ غالباً ڈاکٹر اقبال نے اسی پس منظر میں کہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔
पहला तकाजा है ईमान बिल रसूल। अब फिरका परस्ती के इस दौर में ईमान की अगर मैं वजात किसी भी मसलक के स्कॉलर की जुबानी करूं तो दूसरा मसलक रखने वाला उसका इनकार कर सकता है। तो आइए ईमान की वजात उस हस्ती मुकद्दस की जुबानी अर्ज करूं कि जिसका कलमा पढ़ के आप और मैं मुसलमान हुए हैं। आइए आपको दरबार मुस्तफ़ा में लिए चलता हूं। मेरे आका की महफिल सजी है, उस महफिल पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो कि जिस महफिल में सुनाने वाला हबीब हो तो सुनने वाला सिद्दीक हो। मेरे आका सहाबा के झुरमट में कैसे बैठे थे, जैसे सितारों के झुरमट में चांद होता है। शायद कोई कहे ये अहले सुन्नत होते ही मुबालगा करने वाले हैं। अरे ये मेरी तशबीह नहीं, ये सहाबी रसूल जाबिर बिन समरा की तशबीह है। हदीस है मिशकात में, जाबिर कहते हैं आसमान पे 14वीं का चांद पूरी आबोताब से जगमग जगमग कर रहा था। जमीन पे आमना का लाल यमन से आई हुई सुर्ख डोरों वाली चादर ओढ़ के बैठा था। फरमाते रई तो इलई है व इलल कमरे, मैंने एक नजर आसमान के चांद को देखा, एक नजर आमना के लाल को देखा। फहवक्सन हिंदी मिनल कमरे, मेरा फैसला यह था कि मेरे आका का चेहरा चांद से कई गुना ज्यादा हसीन है। अब मेरा चिश्ती साबरी ज़ौक़ है उलमा से माजरत के साथ कि उर्दू शायर आया, उसने कहा तेरे हुस्न का कौनैन में जवाब नहीं, गुरूब होता कहीं ये वो आफताब नहीं, ये इंतखाब फकत मेरा इंतखाब नहीं, खुदा के घर में भी मोहम्मद का जवाब नहीं। फिर उर्दू है काशिफ साहब, पर पंजाबी भी पंजाबी है। वारिस शाह की जबान है, बुल्ले शाह की जबान है, पीर मेरे अली की जबान है, ख्वाजा फरीद की जबान है। पंजाबी शायर आया, कहता माही मेरा सब तू सोना जुल्फा छल्ले ही छल्ले, माही मेरा सब तू सोना जुल्फा छल्ले ही छल्ले, लोकी लबदे रब नू एनू रब से नेड़े घल्ले, शाना इस दियां सब तू उचियां बल्ले बल्ले, सायम सोने होर भी होसन पर मेरे मदनी तो थल्ले ही थल्ले। हनफियों के इमाम है मुल्ला अली कारी, उलमा जानते हैं, शरह शमाइल तिरमिज़ी में लिखते हैं उस चांद बेचारे का मुकाबला ही क्या है हुस्न मुस्तफ़ा से। क्यों कि चांद जब मशरिक वाले मुल्कों में चमकता है तो मगरिब वाले मुल्कों में अंधेरा होता है, जब मगरिब वाले मुल्कों में चमकता है तो मशरिक वाले मुल्कों में अंधेरा होता है, शिमाल वाले मुल्कों में चमकता है तो जनूब वाले मुल्कों में अंधेरा होता है, जनूब वाले मुल्कों में चमकता है तो शिमाल वाले मुल्कों में अंधेरा होता है। हमारे आका बयक वक्त ऐसा चांद है जो मशरिक भी रोशन करते हैं, मगरिब भी रोशन करते हैं, शिमाल भी रोशन करते हैं, जनूब भी रोशन करते हैं। अरे यारो ये ज़ाहिर भी रोशन करते हैं और बातिन भी रोशन करते हैं। मेरे आका तशरीफ फरमा है, अर्ज क्या कर रहा था कि ईमान किसे कहते हैं। हदीस कहां है, असखुल कुतब बाद किताबिल्लाह बुखारी में है। मेरे आका ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। फरमाया तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता, चाहे दाढ़ी रख ले, चाहे नमाज पढ़ ले, चाहे हज कर ले, चाहे ज़कात दे ले, चाहे तहज्जुद पढ़ ले, चाहे अवाबीन पढ़ ले, चाहे जिहाद कर ले, मोमिन नहीं जब तक अपने बाप से बढ़ के, औलाद से बढ़ के, सारे जहान से बढ़कर मेरी जात से मोहब्बत न करे। समझ आइए। फिर खुदा मुसव्विर पाकिस्तान डॉक्टर इकबाल की कब्र पे हजारों रहमतें करे, उसने तर्जुमा किया। किसी ने कहा डॉक्टर जरा ये बता कुरान और हदीस का निचोड़ क्या है। कहता मग़ज़ कुरान रूह ईमान जान दीन हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। अगर कुरान का मगज़ पूछना चाहता है, ईमान की जान पूछना चाहता है, इस्लाम की रूह पूछना चाहता है, वो नमाज नहीं, वो रोजा नहीं, वो हज नहीं, वो ज़कात नहीं, वो तो आमना के लाल की सच्ची मोहब्बत है। आज हमारा नौजवान कोई इंग्लैंड जाता है, कोई रशिया जाता है, कोई चाइना जाता है, कोई
आला तालीम के लिए जाता है, PhD के लिए जाता है, जब वापस आता है कोई ईमान का सौदा करके आता है, कोई जमीर का सौदा करके आता है, कोई दिल का सौदा करके आता है। इकबाल जब बाहर से आने लगा, किसी ने कहा इकबाल जमीर बेचा है, ईमान बेचा है, या दिल बेचा है। इकबाल तड़प के कहता है खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना नजफ। कहता न जमीर का सौदा किया है, न ईमान का सौदा किया है, न दिल का सौदा किया है। गया था मेरी आंखों में दरे मुस्तफा और दरे अली की खाक का सुरमा था, आया हूं तो फिर भी दरे मुस्तफा और दरे अली की खाक का सुरमा मौजूद है। समझ आ रही है बात की? फिर तवज्जो फरमाइए। आइए फिर आपको दरबार मुस्तफा में लिए चलता हूं। मेरे आका की महफिल सजी है, उस महफिल पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो कि जिस महफिल में सुनाने वाला नबी हो तो सुनने वाला अली हो। मेरे आका सहाबा के झुरमट में कैसे बैठे थे? पूछना हो तो सहाबी या किसी और से न पूछ, जिब्रील अमीन से पूछ। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील तू 1,24,000 अंबिया के पास गया है, जरा ये बता सारी कायनात में सबसे बढ़ के हसीन किसको पाया है? जिब्रील कहता कल्लबतुल अर्दा मशारे कहा व मगारे बहा फलम अजिद अफजल मिन मुहम्मदी। या रसूलल्लाह मैंने जमीन के शर्क भी देखे हैं, गर्ब भी देखे हैं, पर आप जैसा हसीन मेरी आंख ने देखा नहीं है। मेरे आका ने उमर फारूक का हाथ पकड़ा, आपने फरमाया तुझे मेरे साथ कितनी मोहब्बत है? कहता ला अंत हब्बो या रसूलल्लाह ला अंत हब्बो इलैया मिन कुल्li शैइन इल्ला नफ्सी। यार सच्चे सच्चे लोग, सच्ची सच्ची बात अर्ज करते हैं हुजूर सारी कायनात से आप मुझे बढ़ के प्यारे हैं सिवाय मेरी जान के। मेरे आका ने फरमाया ला या उमर हत्ता अकूना हब्बा इलैका मिन नफ्सिक। उमर तेरा ईमान कामिल तब होगा जब मैं तुम्हें कायनात से भी बढ़ के महबूब हो जाऊं, तेरी जान से भी बढ़ के महबूब हो जाऊं। उमर फारूक ने 1 मिनट गौर किया, फिक्र किया, फैसला बदला। अर्ज करते हैं आका आज के बाद आप मुझे कायनात से भी बढ़ के प्यारे हैं, मेरी जान से भी बढ़ के प्यारे हैं। मेरे अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह आज के बाद आप मुझे सारी कायनात से भी बढ़ के प्यारे हैं, मेरी जान से भी बढ़ के प्यारे हैं। मेरे आका ने फरमाया अलान या उमर, उमर अब तेरा ईमान मुकम्मल हो गया है। सुभान अल्लाह। फिर बाज लोग कलमा पढ़ के भी कह देते हैं ये गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, होना जो इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। ये बात सुन्नियों का नारा है, ये बात सुन्नियों का नारा नहीं। कुरान भी आका के इश्क की बात से भरा हुआ है, हदीस भी भरी पड़ी है। मेरे रब ने फरमाया महबूब ऐलान कर दीजिए कुल इनकान आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तखशौन कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही मिनल्लाहि व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिह। महबूब ऐलान कर दीजिए, उम्मत को बता दीजिए अगर तुम्हारे दिलों में बाप की मोहब्बत, बेटे की मोहब्बत, भाई की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत, घर वालों की मोहब्बत, मकान की मोहब्बत, माल तिजारत की मोहब्बत सारी इकट्ठी होके अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से बढ़ गई, फरमा इंतजार करो हम तुम पर अजाब लेकर आए। फरमा अगर मेरी पकड़ से बचना चाहते हो, मेरे अजाब से बचना चाहते हो, मेरी गिरफ्त से बचना चाहते हो तो बाप की मोहब्बत, बेटे की मोहब्बत, भाई की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत, मकान की मोहब्बत, माल की मोहब्बत इकट्ठी करके आमना के लाल के कदमों पे कुर्बान कर दो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अज़मतो शान मुस्तफा, अज़मतो शान मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। अब शायद किसी दोस्त के ज़हन में ख्याल आए इश्क रसूल की आपने बात तो कर दी, इसका सिला क्या है? क्या मिलेगा अगर आका से इश्क रख लें तो? ईमान ही नहीं आएगा अगर आका से मोहब्बत नहीं है। अगर सिला सुनना चाहता है तो खुद ज़बान मोहम्मद मुस्तफ़ा से सिला सुने। हदीस फिर बुखारी से है, लेकिन बुखारी पढ़ने के लिए भी शर्त है कि दिल में आका की इश्क की शमा जली होनी चाहिए, आंखों पर ताज़ीम मुस्तफ़ा की ऐनक लगी होनी चाहिए, और पढ़ा हुआ किसी इमाम अहमद रजा जैसे आशिक के शागिर्द से होना चाहिए। क्या मोहब्बत से जो नहीं पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी।
حدیث کیا ہے توجہ فرمائیے. میرے آقا کی محفل سے جی ہے. ایک صحابی کھڑا ہو گیا, اس نے کہا جی متسا, قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا نے فرمایا ما عدت لہا. میرے صحابی تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی؟ اب صحابی کا جواب سن. کون ہے صحابہ؟ میرے رب نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. فرمایا اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو اس انداز میں ایمان لاؤ جس انداز میں میرے یار کے صحابہ ایمان لائے. ان کے ایمان کو میرے رب نے ماڈل اور نمونہ بنایا ہے, میں ان کی بات کر رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا تیاری کیا ہے؟ صحابی عرض کرتا ہے ما عددت لها من کثیر صلاۃ ولا صوم الا انی احب اللہ ورسولہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس کو نمازوں کا زیادہ سٹاک نہیں ہے, زیادہ روزے نہیں ہیں. میرے پاس ایک چیز ہے کہ مجھے عشق ہے خدا سے اور عشق ہے جناب محمد مصطفیٰ سے. پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں, میں تو ان کے سامنے طفل مکتب ہوں. اب مقام غور ہے, اگر محبت رسول, عشق رسول کی حجیت نہ ہوتی, اہمیت نہ ہوتی, ریزلٹ نہ ہوتا, صلہ نہ ہوتا, ثواب نہ ہوتا, کوئی بدلہ نہ ہوتا, حضور تو آئے شرک و بدعت مٹانے تھے. کہنا چاہیے تھا میرے آقا کو اگر نماز روزہ کامل نہیں, میرا عشق کچھ نہیں کرے گا, سیدھا جہنم میں. لیکن میرے آقا نے بھی اس شاخ کے عقیدے پہ مہر لگا دی ہے. میرے آقا نے فرمایا میرے ساتھی سن, قانون خدابندی کیا ہے؟ المرء مع من احب. قانون یہ ہے بندہ جس قسم کے آدمی سے محبت کرے گا قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا. اگر شرابیوں سے محبت ہے تو شرابیوں کے گروہ میں, جواریوں سے محبت ہے جواریوں کے گروہ میں. وَأَنْتَ مَا مَنْ أَحْبَبْتَ, اگر تو میرے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت والے دن کالی کملی کی چھاؤں تلے ہوگا. المرء مع من احب, بندہ جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا. وَأَنْتَ مَا مَنْ أَحْبَبْتَ, اگر تو میرے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت والے دن کالی کملی کی چھاؤں تلے ہوگا. پھر شاعر کیوں تڑپی, کہتا فضل رب العلا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. فضل رب العلا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو اس کو روزے جزا اور کیا چاہیے. سبحان اللہ. اب حضرت انس فرماتے یہی بخاری میں, ما فرحنا بشیء فرحنا بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم انت ما من احببت. قابل غور جملہ ہے. حضرت انس کہتے ہیں پورے دور اسلام میں ہم کسی دن اتنے خوش نہیں ہوئے جتنے آقا کے اس فرمان والے دن خوش ہوئے. ما فرحنا بشیء, بدر میں فتح ہوئی, مکہ فتح ہوا, بے شمار مال غنیمت آیا, کبھی صحابہ اتنے خوش نہیں ہوئے جتنے اس قول والے دن خوش ہوئے انت ما من احببت. وجہ کیا ہے؟ وجہ انڈرسٹوڈ ہے کہ صحابہ کو پتا تھا اس دن یقین ہو گیا. حضور نے فرمایا جو میرے ساتھ محبت رکھتا ہے میرے ساتھ ہوگا. صحابہ کو یقین ہو گیا کہ عمل میں کمی بھی ہوئی عشق مصطفیٰ کے صدقے بیڑا پار ہے. اور میرا دوسرا سوال ہے, سوال یہ ہے, صحابی کہتا ہے کہ ما عددت لها من کثیر صلاۃ ولا صوم, میرے پاس زیادہ نماز روزہ ہے ہی نہیں. کیا صحابہ بھی ہماری طرح نماز پڑھتے تھے؟ کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی. اگر نمازیں صحیح تو پھر جھوٹ بولا ہے. کیا جواب ہے؟ ایک ہی جواب ہے جو عقیدہ اہل سنت کے مطابق آتا ہے. نمازیں بھی کامل, روزے بھی کامل, حج بھی کامل, زکات بھی کامل, لیکن تقیہ اور بھروسہ عبادت پہ نہیں تھا, شفاعت محمد مصطفیٰ پہ تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ, عظمت و شان مصطفیٰ, شفاعت مصطفیٰ, عقائد اہل سنت. سمجھ آ رہی ہے؟ نماز کامل تھی, روزہ کامل تھا, حج کامل تھی, زکات کامل تھی, لیکن تقیہ اور بھروسہ عبادت پہ نہیں تھا, دعا اور شفاعت مصطفیٰ پہ تھا. شاید کو مجمع سے کہے ویسے آپ نے جملہ پھینک دیا, میں مسلم سے حدیث پڑھ دیتا ہوں. ابو موسیٰ اشعری اور عبید ابی عامر ایک جنگ میں شریک ہے. عبید ابی عامر شدید زخمی ہو گئے, وقت نزع آ گیا, شہادت کے عظیم مرتبے پہ فیض ہونے والے. ابو موسیٰ اشعری کو بلاتے ہیں, کہتے ابو موسیٰ میرا وقت شہادت آ پہنچا ہے, میری وصیت سن, مدینہ جانا, آقا کو میرا سلام پہنچانا. ہائے ہائے, آپ نے بات نہیں سمجھی. وقت نزع, بیوی کا خیال نہیں ہے, بچوں کا خیال نہیں ہے, ماں کا خیال نہیں ہے, بینک بیلنس کا خیال نہیں ہے, خیال ہے تو خیال مصطفیٰ ہے. کہتا ہے
फरमाया मदीना जाना, आका को सलाम देना और अर्ज करना मेरे लिए दुआ मगफरत फरमा दे। आपने वैसे सुभान अल्लाह कह दी, समझी नहीं बात। ये वसीयत करने वाला कौन है? सहाबी भी है, शहीद भी है। सहाबी कौन होता है? तिरमिज़ी की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया ला तमस्सुन नार मुस्लिमन रानी और रामन रानी। मेरे आका ने फरमाया जिसने ईमान की हालत में चाहे एक लम्हा मेरे मुखड़े की ज़ियारत कर ली, उस पर दोज़ख की आग हराम होगी। जिसने मेरे देखने वाले को देख लिया, उस पर भी दोज़ख की आग हराम है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शहीद कौन है? फरमाया शहीद के खून शहादत का पहला कतरा जमीन के बाद में आता है, खुदा उसकी जिंदगी के सारे गुनाह पहले माफ फरमा देता है। शहीद भी है, सहाबी भी है। कहता है मदीना जाना, आका को सलाम देना और अर्ज करना मेरे लिए दुआ मगफरत कर दे। अकीदा वाज़ेह है। क्या बताना चाहता है? हो सकता है खुदा शहादत का सवाब रद्द कर दे, नमाज का सवाब रद्द कर दे, हज का सवाब रद्द कर दे, ज़कात का सवाब रद्द कर दे, लेकिन मुस्तफा की दुआ तो कबूल ही कबूल है। उसका अकीदा क्या था? आरिफ साहब अगर शेरों में बयान किया जाए, उसका अकीदा था किसी को नाज होगा अपनी तात का, इबादत का, हमें तो एक भरोसा है मोहम्मद की शफाअत। सुभान अल्लाह। किसी को नाज होगा, सहाबी का अकीदा क्या था? किसी को नाज होगा अपनी ताकत का, इबादत का, हमें तो एक भरोसा है मोहम्मद की शफाअत का। अरे सहारा मिल गया जिसको तेरी चश्मे इनायत का, उसे क्या खौफ दोज़ख का, उसे क्या डर क़यामत का। अब चल पड़े अबू मूसा अशरी जंग के बाद मदीना पहुंचे। मेरे आका तशरीफ फरमा है, अर्ज करते हैं हुजूर अबीद अबी आमिर वक्त शहादत सलाम दे रहा था। मेरे आका ने फरमाया अबू मूसा तुझ पर भी मेरा सलाम हो और अबीद पर भी मेरा सलाम हो। सुभान अल्लाह। उसने अर्ज की वो वक्त नज़ा कहता था मेरे लिए दुआ मग़फ़िरत कर दे। मकाम गौर है, अगर मेरे आका की दुआ और हमारी दुआ होती बराबर, हुजूर कहते मेरी दुआ क्या करेगी, जो कुछ कर गया सो कर गया। हदीस के लफ्ज़ में फदआ बिमाइन, मेरे आका ने पानी मंगवा लिया, फतवज़्ज़ा मिन्हु, वुज़ू फरमा लिया, व रफ़ा यदैहि, हाथ खड़े कर दिए, फरमाया अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ले अबीद अबी आमिर, ऐ अल्लाह अबीद अबी आमिर की बख्शिश फरमा दे। अबू मूसा अशरी कहते हैं आका ने इस ज़ौक़ से दुआ मांगी कि मेरा दिल तड़प उठा, काश आज मरने वाला अबीद न होता, मैं होता, हुजूर मेरे लिए दुआ करते। तो मेरे आका ने उसके लिए दुआ करके दुनिया को बता दिया कि मेरे सहाबी का अकीदा सही है कि भरोसा और तकिया इबादत पे नहीं होना चाहिए, मेरी शफाअत पे होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा, सिद्दीक तेरी सदाकत को, उमर तेरी अदालत को, उस्मान तेरी सखावत को, अली तेरी जुर्रत को, सहाबा तुम्हारे इश्क को, सहाबा तुम्हारे मकाम को, अहले बैत तुम्हारी मोहब्बत को। अब अहले मोहब्बत की बात करनी है ना, आरिफ साहब खुद भी अहले मोहब्बत है कि जब मोहब्बत हो जाए तो होता क्या, मुहिब का माल भी महबूब के नाम पे कुर्बान, मुहिब की जान भी महबूब के नाम पे कुर्बान, और मुहिब के तसव्वुर का किबला काबा भी महबूब की जात होती है। ये तीन म्यार, इन तीन म्यारों पे निगाह नबूवत के मरकज अव्वल, तूर नबूवत के सीना अव्वल, दरसगाह मोहम्मदी के तिलमीज अव्वल सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी के हवाले से अर्ज करना है। क्योंकि लोग लिखते हैं गाड़ियों के पीछे में नौकर साहबा का, जरा उनको भी बताना है ना कि नौकर साहबा का वो होता है जो पहले आका का नौकर बने। जो आका का नौकर नहीं बनता वो साहबा का नौकर बन ही नहीं सकता। अब पहला म्यार है कि जान महबूब के नाम पे कुर्बान। जब हिजरत करके मेरे आका जा रहे हैं, सिद्दीक़ अकबर साथ हैं, गार आती है, बात आपने सुना है, बस इशारा देना है। अर्ज करते हुजूर आप बाहर तशरीफ रखें, मैं गार का मुशाहिदा करता हूं। गार में देखा जगह जगह सुराख है, सिद्दीक ने तन के कपड़े फाड़ फाड़ के सुराख बंद करने शुरू किए। एक सुराख रह गया, सतर का कपड़ा रह गया, सिद्दीक लेट गए, वहां अपनी एड़ी रख दी। अर्ज करते हैं हुजूर अंदर तशरीफ लाइए। हुजूर अंदर आए, सिद्दीक की गोद में सर रख के आराम फरमा हो गए। हाय हाय हाय। फिर खुदा डॉक्टर इकबाल की कब्र पे हजारों रहमतें करे। कहता मैं बताऊं कि गार का मंजर क्या था। गार का मंजर क्या था, मेरे आका की आंखें नीम खुली हैं और सिद्दीक जी भर भर के दीदार कर रहे हैं। कहता झूम रही हैं शोखियां दीदे नीम बाज में, झूम रही हैं शोखियां दीदे नीम बाज में, जाग रहे हैं पासवां यार है ख्वाबे नाज में।
झूम रही है शोखियां दीदे नीम बाज में, आका की आंखें आधी खुली आधी बंद, ताकि बगैर किसी झिझक के मेरा यार मेरे जलवा देखता रहे। मकाम गौर है, जो एक लम्हा ईमान की हालत में आका के चेहरे को देखे वो सहाबी है जो 3 दिन और 3 रातें अकेला बिठा के टिकटिकी लगा के देखे, वो कौन होगा? सिद्दीक तेरी सदाकत को, मोहब्बत से सिद्दीक तेरी सदाकत को, सिद्दीक तेरी अजमत को, नारे तहकीक। समझ आ रही है कि जो एक लम्हा, वो एक उर्दू का शेर है नहीं है तो मजाजी, लेकिन फिट यही होता है। वो कहता है मेरा क्या मकसद ये है, मेरी इल्तिजा ये है, मेरी ख्वाहिश ये है। महबूब को कहता है तुम आ जाओ, तुम्हें अपनी आंखों में बिठा लूं, तुम आ जाओ, तुम्हें अपनी आंखों में बिठा लूं, तेरे गिर्द पलकों के पर्दे लगा दूं, खुदा की कसम फिर किसी को न देखूं, तुम्हें भी किसी को दिखाना नहीं है। तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम्हें अपनी आंखों में बिठा लूं। एक शायर का तखय्युल है, अपने महबूब से कहता तुम आ जाओ, तुम्हें अपनी आंखों में बिठा लूं, तेरे गिर्द पलकों के पर्दे लगा दूं, खुदा की कसम फिर किसी को न देखूं, तुम्हें भी किसी को दिखाना नहीं है। ये सारा मामला मेरे रब ने सिद्दीक के लिए गार में पूरा कर दिया कि या सिद्दीक हैं या मेरे आका हैं, वो जी भर भर के आका के चेहरे का जलवा कर रहे हैं। उस एरिया में एक सांप रहता था, जब नबूवत की भीनी भीनी खुशबू आई, उसने गार के इर्द गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए। फिर डॉक्टर इकबाल की जुबानी वो कहता क्या था, कभी ए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबासे मजाज में, कभी ए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबासे मजाज में, कि हजारों सिजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने न्याज में। कभी ए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबासे मजाज में, कि हजारों सिजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने न्याज में। पंजाबी का भी अपना टेस्ट है। पंजाबी शायर आया, कहता आज से उम्र गुजारी ते झल्ले खार हजारा, आसे आसे उम्र गुजारी ते झल्ले खार हजारा, माली बाग न वेखण दींदा आइयो जदू बहारा। चक्कर लगा के गार के गिर्द आ गया सिद्दीक की एड़ी वाले सुराख। अब जुबान हाल से कहता है सांप, सिद्दीक पांव हटा लो, मेरे मुंह में जहर है। सिद्दीक ने जुबान हाल से कहा होगा तेरे मुंह में जहर है, मेरी झोली में तरियाक है। सांप ने कहा होगा सिद्दीक पांव हटा लो, मेरे मुंह में मौत है। सिद्दीक ने कहा होगा तेरे मुंह में मौत है, मेरी झोली में हयात है। सांप ने कहा पांव हटा लो, मैं मारेगार हूं। सिद्दीक ने कहा तू मारेगार है, मैं यारेगार हूं। सांप ने कहा मैं जान लेने से न टलूंगा। सिद्दीक ने कहा मैं आका के नाम पे जान देने से न टलूंगा। सांप ने बार किया और बार बार किया। सिद्दीक ने जिस्म को जुम्बश न दी। जान जाती है तो जाए, लेकिन आका के आराम में फर्क ना आए। जहर दिमाग में पहुंचा, बशरी तकाज़ों के तांत आंसू चले। अब मेरे आंसू चलते हैं मेरी वास्कट पे, अलामा साहब के आंसू चलते हैं उनकी कमीज पे। मैं उन आंसुओं की अजमत को सलाम कहता हूं जो गिरते हैं तो चेहरे मुस्तफा पे गिरते हैं। आंसू गिरे, मेरे आका जाके फरमा सिद्दीक क्या बात है। अब डिफरेंस नोट करें अल्लाह के नबी और आम आदमी का। लोग तो कहते हैं जैसे वो बशर जैसे हम बशर। अर्ज करते हैं हुजूर, सांप ने डस लिया है। अगर आका हमारे जैसे होते, कहते जाओ किसी हॉस्पिटल में वैक्सीन लगवा लो, लेकिन मेरे आका ने फरमाया सिद्दीक अगर जहर मौजूद है हमारे पास इलाज भी मौजूद है। घबराओ नहीं, अगर जहर है तो इलाज भी है। इलाज क्या है? आजकल डॉक्टर्स और मेडिकल वाले कहते हैं कि हर चीज डिस्पोजेबल इस्तेमाल करो। दूसरे की थूक में, लुआबेदान में बीमारी के जरासीम होते हैं। अरे यारो, तेरी मेरी लुआबेदान में बीमारी के जरासीम हैं, आका के लुआबेदान में शफा के जरासीम हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। आका ने गोल टैबलेट नहीं दी, इंजेक्शन नहीं दिया, ट्यूब नहीं दी, लुआबेदान लगाया, सिद्दीक के सारे दुख दर्द दूर हो गए। और शायर ने क्या तर्जमा किया, जो दर बदर भटकते हैं दवा के लिए, जो दर बदर भटकते हैं दवा के लिए, उन्हें कहो कि मदीना चलें शफा के लिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया।
सिद्दीक ने जान पेश की, कई बार पेश की, मैंने तो एक एक बात करनी है। अब माल की बारी आ गई, गुज़वे तबूक है। मेरे आका ने फरमाया मन जहद जैशिल उसरत फलहुल जन्नह, सहाबा की जमात जो मेरे मुश्किल के वक्त के लश्कर का सामान देगा, मैं उसको जन्नत की गारंटी अता फरमाऊंगा। लोग कहते हैं जिसका नाम मोहम्मद और अली है किसी चीज के मालिक नहीं। इससे बढ़ के उनकी मिल्क में क्या हो सकता है कि जमीन पे बैठ के रब की जन्नत तकसीम फरमा रहे हैं। फरमा मन चाहता जैशिल उसरत फलहुल जन्नह, जो मेरे मुश्किल के वक्त के लश्कर का सामान देगा मैं जन्नत की गारंटी अता फरमाऊंगा। हर सहाबी घर गया, सिद्दीक भी घर गए, घर का सारा माल इकट्ठा किया, तन के कपड़े उतारे, कंबल लपेटा, कांटों से सिया, गठड़ी बना के मेरे आका के कदमों में आ गए। मेरे आका ने फरमाया सिद्दीक मेरे लिए क्या लाए हो और घर वालों के लिए क्या रख गया? अर्ज करते हैं हुजूर माल सारा आपके कदमों में है, घर वालों के लिए अब कहतुल्लाह व रसूलहू, घर या खुदा छोड़ के आया हूं या मोहम्मद मुस्तफा छोड़ के आया हूं। सुभान अल्लाह। अब कहतुल्लाह व रसूलहू, घर वालों के लिए खुदा छोड़ के आया हूं या मुस्तफा छोड़ के आया हूं। फिर डॉक्टर इकबाल आया, खुदा उसकी कब्र पे करोड़ों रहमतें करे। किसी ने कहा ना डॉक्टर इकबाल से, मैंने उसके जमाने में देखा कि आपकी दाढ़ी है नहीं, ना आप मौलवी, न शेखुल हदीस, न शेखुल कुरान, कौम आपको हकीमुल उम्मत कहती है, वजह? उसने कहा मैंने 1 करोड़ दफा आका की जात पे दरूद पढ़ा है, कौम ने हकीमुल उम्मत का टाइटल दे दिया है। वो डॉक्टर इकबाल बात क्या कर रहा था कि सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब कहतुल्लाह व रसूलहू, डॉक्टर इकबाल आया, कहता परवाने को शमा बुलबुल को है फूल बस, परवाने को शमा बुलबुल को है फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। नात का शेर है, मुझे बहुत पसंद है कि दर्दो आलाम के मारे हुए क्या देते हैं, दर्दो आलाम के मारे हुए क्या देते हैं, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं। अरे अक्ल वालों के नसीबों में कहां ज़ौक़े जुनूं, अक्ल वालों के नसीबों में कहां ज़ौक़े जुनूं, इश्क वाले हैं जो घर बार लुटा देते हैं। तो समझ आ रही है? थोड़ी देर गुजरी ना, सीरत अलबिया में है, उलमा देवबंद भी इसके हवाले देते हैं। जिब्रील आ गया, जिब्रील भी कंबल लपेट के कांटों से सी के आ रहा है। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील ये लिबास कैसा है? जिब्रील ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह आपके गुलाम सिद्दीक के जो कंबल लपेटने वाली अदा आपके रब को इतनी पसंद आई है, आज आसमान के हर फरिश्ते ने यही लिबास पहना हुआ है। और अगली बात तवज्जो से, इलाहुल आलमीन फरमाते हैं सिद्दीक से पूछो सब कुछ मेरे यार के नाम पे कुर्बान तो किया है, ये बता अंत रादिन अला फक्र का हाजा अम साखितुन, सब कुछ लुटा के अल्लाह से राजी होकर नाराज हो। नहीं समझी आपने बात? मुझे को हाजी दिखा दें, को गाजी दिखा दें, को नमाजी दिखा दें, को मुजाहिद दिखा दें, अल्लाह ने सलाम भेजा हो, पहले ये कहा कि अल्लाह सलाम भेज रहा सिद्दीक को, और फिर कहा अंत रादिन अला फक्र का हाजा अम साखितुन, इस फकर पे राजी हो जो अल्लाह से नाराज हो। कोई गाजी नमाजी हाजी दिखाएं जो अल्लाह सलाम भी भेजे और पूछे बंदे राजी हो क्यों नाराज हो? इश्क मुस्तफा, ताज़ीम मुस्तफा, अकीदत मुस्तफा, निस्बत मुस्तफा ने सिद्दीक को इस मकाम पे पहुंचाया कि रब बेनियाज होके पूछ रहा है सिद्दीक अल्लाह से राजी हो के नाराज हो। शायद किसी जाहिल को यह समझ ना आए तो डॉक्टर इकबाल इसकी भी वजाहत कर गया, कहता खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है।